ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جادو ٹونے کے حوالے سے کس پر کون سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، دن بدن کیوں ہمارے ہاں اس طرح کے کام اور اس طرح کے لوگوں کی طرف لوگوں کا رجوع، لوگوں کا دھیان، لوگوں کی توجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، رانا صلاح اللہ صاحب ہیں، اور لاہور سے ہی ہمارے ساتھ علامہ محمد ڈاکٹر سید حسین اکبر صاحب ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمارے ساتھ خورشید بی بی ہیں، گلشن بی بی ہیں، جو کہ متاثرہ خاتون ہیں جادو سے۔ بریک سے پہلے رانا صاحب جو آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ ان پر کوئی کیفیت تھی اب سے کئی سال پہلے، اب کی کیا صورتحال اب کی کیا صورتحال ہے یہ بتائیے گا۔ اس کے بعد تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج جب میں نے انہیں کال کیا آپ کے وجہ سے، پھر میں نے فون پہ انہیں کال کیا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی طبیعت خراب تو نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا گلے کے اندر کوئی کیفیت ہے۔ میں نے کہا پھر آ جاؤ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ بتائیے گا خاتون گلشن بی بی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، پھر کیسے مسئلہ حل ہوا؟ میں گاؤں گئی تھی، اور گاؤں کی بجائے میں نا بائی نکلی کھلی، وہاں پہ جو ان کی ہریالی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، قبرستان وغیرہ، وہاں پہ گئی، اور وہاں سے آئی گھر پہ، میرے کندھے وغیرہ اور سر بھاری ہونے لگا، میرے آنکھوں سے پانی ایسے ٹپک رہا تھا، میری آواز دبائی گئی، پھر میری ٹانگوں ہے، پھر ایسے میرا جسم ایسے جیسے کسی نے جکڑ دیا ہے، ایسے میرے جسم سے نا ایسے میرا کسی نے جکڑ دیا، اور میرے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اتنی چھل کر میں پڑ رہی تھی، سبھی مجھے پکڑ رہے تھے، لیکن بے بس جی ہو گئی تھی میں، اور میری اتنی آواز اتنی بلندی سے جا رہی تھی، اتنی تھی آنکھیں موٹی ہو جاتی تھی، اور لوگوں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ پھر ان کے پاس آئے میرے دیورات، ساس میری، 150-200 بندہ تھا میرے ساتھ جو مجھے پکڑنے والا تھا، پھر ان کے ساتھ ان کے یہاں پہ لے کر آئے ان کے پاس، اور ان لوگوں نے آتے ہی مجھے نا ان لوگوں نے مجھے ایسے کیا، اور میرا جسم جو تھا نا بالکل ایسے نا جیسے کسی نے چھوڑ دیا۔ اچھا، ہاں جی رانا صاحب، یہ جو انہوں نے کیفیت بیان کی، اب کوئی کیا وہ حاضری کی جو آپ بات کر رہے تھے، ہاں جی، اس میں ذرا یہ کر کے دیکھیے، معلوم کیجئے کہ اب کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے ان کی؟ ان کی کیفیت آج سے 15 سال پہلے تو میرے پاس جب لے کے آئے نا، ان کے دیور آئے تھے، میں نے انہیں کہا جا کے میسج دو، میرا میسج دو ان چیزوں کو کہ اللہ کے کلام سے دور ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، اس کی جان چھوڑ دو۔ گھر پہ اس کی جان چھوڑی انہوں نے، میں نے کہا رات کو لے آنا میرے پاس جب میں بیٹھتا ہوں۔ جب میں بیٹھا تو رات انہیں یاد نہ رہا، اس کتاب میں یہ واقعہ روحانیت کی موجود ہے منتقلی میں۔ تو پھر جب ان کے اوپر کیفیت دورے کی ہوئی، پھر دوبارہ سے پھر لوگ کافی اکٹھے ہوئے، بہت سارا، پوری آبادی مکہ کالونی میں 150 بندہ تقریباً جب میرے پاس لے کے آئے آستانے میں، پھر میں نے دیکھا اور اس کو حاضر کیا تو اس میں یہ گش کھا کے زمین پہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو اب کر کے دکھائیے کہ تاکہ ہمیں بھی کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑو اس کی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی۔ ٹھیک، رانا صاحب جی فرمائیں۔ تفصیل بیان کیجیے گا۔ تفصیل اس میں کیونکہ عرصہ دراز سے چیزیں پہلے تھیں، اب پھر سے دوبارہ یہ 3-4 دن سے انہیں کوئی ایسا محسوس ہوا، تو اچانک دیکھو یہ قدرتی، آپ لوگوں نے بلایا تو میں نے اسے فون کر دیا، 2-3 لوگوں کو بلایا، بھی 2 اور نہیں آئے، کیونکہ کچھ لوگ یہاں آنے سے بھی ڈرتے اب کسی کو حاضری کی جائے، بندہ بے ہوش دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ سوشل ورکر ہیں ایکچولی، وہاں پہ یہ الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا ناظم کے لیے، یا چھوٹے، ہاں جی، حاضر طریقہ یہ جعلی فراڈ ہوتا ہے، لعنت اللہ علیہ حضرت صاحب، لعنت اللہ علیہ الکاذبین، جو جھوٹا ہوتا ہے ویسے لعنتی ہوتا ہے۔ اب جان نہیں آ جاتی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کرتا، صرف ڈنڈے سے سٹک کے ساتھ میں دم کرتا ہوں، کسی خاتون کو کبھی بھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب کیسا میرا طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اب تو تھوڑا سا گلا بھی کھول دیتا ہوں، گلا بھی ابھی آپ کا گلا صحیح ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلے میں زیادہ ہو رہا ہے، گلا بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بیٹھے صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی کوئی۔ بسم اللہ، کلام تو برحق ہے۔
ये नहीं बल्कि पेशावर से एक खातून मेरे पास जिसका साल से गला भी हाजिरी में क्या देखा? हाजिरी में मुख्तलिफ क़ुव्वतें चल रही होती हैं, मेटाफिज़िकल वेव्स होती हैं, इंसानों के ऊपर लहरें होती हैं जो इंसान के दिमाग के ऊपर आके असर कर जाती हैं, उससे बंदा इंसान पोजेस्ड हो जाता है। उसके अंदर जो कैफियत होती, बाज़ औक़ात हाल की कैफियत, बाज़ औक़ात मदहोशी, केमिकल इम्बैलेंस, बाज़ औक़ात बिल्कुल एबनॉर्मल इंसान हो जाता है। अब ऐसे केसेस बाज़ औक़ात आए हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, डॉक्टर राना सनाउल्लाह डाल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल बंदा बेहोश पड़ा है, ठीक है, लेकिन लेके आए मेरे पास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर कुरान करीम के फैज़ान से करम कर दिया। ये उसके करम की बात है। ये हमारा इसमें मेरा काम है सिर्फ तय दिल से उस ज़िक्र कुरानी को पढ़ना, अपनी दिल की गहराई के साथ अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है। उस जिक्र की कैफियत के साथ। मुझे ये बताएं कि अभी आपने क्या अमल किया, किस तरह से किया, कौन सी सूरत आपने हाँ, पढ़ी? जिक्र पढ़ा मैंने, सूरत फलक पढ़ी, सूरत वन्नास पढ़ी, अलम शरीफ पढ़ी, फिर उसके साथ अल्लाह का जिक्र किया, मुख्तलिफ अस्माल हुस्ना जो है वो पढ़े, अल्लाह के अस्माल ग्रामी। लेकिन आपकी बातें नहीं थी जैसे वो पढ़ने वाली। आवाज़ अल्लाह जो देखो जिक्र मैं करता हूँ, अल्लाह मैंने मुंह बंद किया हुआ है, अल्लाह मैं कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ तरीके से आवाज़ें निकल सकती। इसको लोग ऐसे जहल है, मैं समझता हूँ कि बाज़ समझते नहीं। जिक्र जो मैं कुरान करीम का जिक्र कर रहा हूँ, इससे हट के एक लफ्ज़ जो पढ़े वो लानती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बातों में ये चीज़ नहीं थी। हाँ, ये चीज़ पढ़ जिक्र कर रहा हूँ मैं, जिक्र लेकिन ईमान से। इब्तिसाम साहब का जो कहना है ना वो ये है कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आवाज़ आई, फिर जिक्र पढ़ा, इससे पहले जो है वो बिल्कुल आवाज़ वो जो सुनना चाह रहे हैं वो ये कि अगर आपने कोई सूरा पढ़ी है तो उसकी आवाज़ तो आए। चीज़ को जब देखना है, फलक, ये तो जोश हुआ। हज़रत साहब देखो, बात सुनो, ये देखो जिक्र हज़रत साहब देखो, बात यह है, मैं बंद बैठा हूँ अभी जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन ऊंची आवाज से अल्लाह, ठीक है, या रहमान और या रहीम पढ़ूंगा। देख मुंह में बंद है, हर चीज बंद है, चीज को कंट्रोल करना है, उसकी तरफ भी नजर आएगी, उठ के तमाचा मार दे। अब ये जगह ये बताएं कि इन पर क्या कैफियत है, इन पे कोई अली भाई, अगर मैं इनको दम करूं, मिसाल दे, हाँ जी, तो मैं ओपन करूंगा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा आपके देखने से हज़रत साहब देखो, एक बात ये है, हर बंदे के दम में फर्क है। आपके पढ़ने में फर्क है, मेरे पढ़ने में फर्क है, पर आप पढ़ेंगे, आप रूहानियत, अगर आपने रूहानियत में पढ़ा, आप सिर्फ आलम फाजल दुनिया के सही है। रूहानियत एक अलग फील्ड है। रूहानियत का मतलब है कि आप पढ़े, आपने खुद कुरान की बात की, जिक्र कर करके देखो, दुनिया का मैं आलम फाजल नहीं हूँ, दुनिया के कुरान पढ़ा है, दुनिया के आलम फाजल हैं, कुरान के, कुरान करीम के आलम फाजल। लेकिन राना साहब ये भी तो बताइए ना कि आपका शुभ आलम दीनियत का है। मैं ताज़ीम करता हूँ, अदब करता हूँ इस नुक्ता नज़र से कि आपके कुरान का इल्म रखते हैं। इल्म रखने वाले बेशुमार हो सकते हैं, रूहानियत का इल्म रखने वाला हर बंदा नहीं हो सकता। राना साहब ये भी जरा बता दीजिए कि अच्छा ये अली भाई एक छोटी बात, चलो नहीं मैं कुछ और मैं बता, आपने ये बात फरमाई है कि रूहानियत का इल्म जो है ना वो और चीज है और शायद कोई कुरान का कोई लुग़वी इल्म और चीज है। नहीं आप जानते हैं इल्म आलम फाजल है, मैं समझता हूँ इसकी नस को समझते हैं आप, इसके तर्जमे को। हम सिर्फ जिक्र जानते हैं। अब सुन ले, मैं एक बात करने लगा। सहाबा कराम की रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी में एक बंदे को ना जहर का असर हो गया, तो सहाबा कराम ने उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, तो वो जहर के असरात ज़ाहिल हो गए। इसका मतलब ये कुरान मजीद के असरात थे ना वो। हाँ बिल्कुल सही, वो असल बात। अब आपके साथ में ये बात गुफ्तगू करना रहा हूँ, आप जिस बात की बात कर रहे हैं उसमें आपने कहा मैंने फलक नास पढ़ी है, लेकिन हमने नहीं सुनी। एक सुनो मेरी बात, एक और मैं अर्ज करूँ, आप लाइव प्रोग्राम में बैठ जाना, दुनिया कहेगी कि मैं सही होता हूँ, अगर कुरान का असर आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूँ, अभी बेशक प्रैक्टिकल करना है तो ये बैठी है आपके सामने। अब मैंने इसे सही किया ना, आप इसे फिर बेहोश कर दें, या मैं इसे पढ़ूंगा दोबारा से पढ़ूंगा, चीजें आ जाएंगी। देखो आप जो चीज आप दोबारा से इनको उस कैफियत में लेके जा सकते हैं, ले जा सकता हूँ, आप लेके जाएं, मैं औज़ु बिकलिमातिल्लाह पढ़ूंगा, कैफियत खत्म हो जाएगी। चले ठीक है, इस पर ये बात ये है, हुसैन अकबर साहब की भी राय ले लेंगे हम, इस पर हुसैन अकबर साहब की भी राय ले लेते हैं, लेकिन इस मौके पे नाज़रीन हमें लेना है वक्फा, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे। तो जो भी बात हो रही है कि हाँ जी, राना साहब ने कहा है कि इस कैफियत में कि जिसमें ये खातून गुलशन बीबी पहले थी उसमें वो वापस ले जाएंगे, और इब्तिसाम साहब का कहना है कि उस कैफियत से मैं इनको निकालूंगा। इस पर बात होगी जी, कुरान की तिलावत होगी, निकलेगी बात, कुरान पाक की तिलावत निकलेगी, इस पर बात होगी जी ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हम मौजूद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है जादू टूने के हवाले से। वक्फे से पहले आपने एक सूरत हाल देखी कि जहाँ पर गुलशन बीबी एक मुतासरा खातून जो अब से
तकरीबन 15 साल पहले एक कैफियत इन पर तारी हुई थी, फिर ये राना सनाउल्लाह साहब के पास आई, राना सनाउल्लाह साहब ने इन पर आपने दम किया और इनकी कैफियत जो है वो इनकी हालत बेहतर हो गई। आज एक दफ़ा फिर राना साहब ने कहा कि इनको उसी तरह की शिकायत थी, तो इनके पास दोबारा ये तशरीफ़ लाई, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम में लेकर आए और उस कैफियत में से वक्फे से पहले आपने देखा कि किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने गुलशन बीबी को निकाला। अब राना साहब का वक्फे से पहले ये कहना था कि जो उस कैफियत में दोबारा लेकर जा सकते हैं। अब हज़रत साहब लाएंगे तो फिर ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये इस सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जरा हुसैन अकबर साहब, हाँ बिल्कुल, हुसैन अकबर साहब से भी हम उनकी राय लेना। हुसैन अकबर साहब, जो अब तक गुफ्तगू हुई है और वक्फे से पहले जो आपने सुना कि किस तरीके से अमल किया, और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि ज़िक्र इलाही था जिससे खातून गुलशन बीबी की हालत, उनकी तबीयत बेहतर हुई, आप क्या कहेंगे? देखें मेरे भाई, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये दो रास्ते हैं, एक शैतानी रास्ता है, एक रहमानी रास्ता है। शैतानी लोग जाके कब्रों में चिल्ले काटते हैं, नंगे बैठते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, क्या कुछ होता है, और अहकाम इलाहिया और शरीयत मुहम्मदिया की मुखालफत करके ये जादू टोने करते हैं, वो तो सरासर हराम है। और जहाँ तक इस्माए इलाही या कुरान करीम का ताल्लुक़ है, कुरान करीम ने ख़ुद कह दिया कुल्ल बिल मौता, कुरान करीम पढ़ने से तो मुर्दे कलाम करने लग जाते हैं। और अहदीस मुतवातरा में मौजूद है, अगर सूरह अल-हम्द को किसी मुर्दा पर 70 मरतबा पढ़ दिया जाए, वो ज़िंदा हो जाए, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात जो अभी ये दोनों भाई कर रहे थे वो ये थी कि कुरान करीम तो हर मुसलमान पढ़ता है, लेकिन हर ज़बान में वो तासीर मौजूद नहीं है। कुरान करीम में तो कह दिया कुल्ल बिल मौता कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसे मुर्दे कलाम करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला उल्ट है, जो मर नहीं रहा होता उसके लिए आओ सूरह यासीन पढ़ो ताकि जल्दी से मर जाए। बात असल वही है कि एक कुरान मजीद जो है, इसको जिस जाविये से देखेंगे उस जाविये से कामिल अकमल है। ये हज़रात जो इस किस्म के अमल करते हैं, कुरान मजीद के औराद और वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और उसमें आकर एक महारत हासिल करते हैं और उसकी तासीर हासिल करते हैं, और कुरानी आयात जब पढ़ते हैं तो उससे यकीनन असर जो है वो सामने आता है। ये काम हर शख्स नहीं कर सकता। कुरान की अज़मत का इनकार नहीं है, बात यह है कि जो कुरान पढ़ रहा है उसकी क्या कैफियत है। यही असा हज़रत ईसा के हाथ में होता था तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे, लेकिन दूसरों के हाथ में होता तो नहीं होते थे। तो बात यह है कि उसके लिए हाथ भी वही चाहिए, ज़बान भी पाक व पाकीज़ा चाहिए, और फिर ये लोग बार बार इस पर एक वजीफ़ा करते हैं, अमल करते हैं, रियाजत करते हैं, उसके बाद नतीजे तक पहुँचते हैं और ये तासीर ले लेते हैं। अब रह गया इसका इस्तेमाल, तो बात फिर वही आ जाती है कि अगर दुखी इंसानियत के काम आना है तो फिर तो ठीक, लेकिन अगर उन दुखी इंसानियत को और दुख पहुँचाना है या सही लोगों को और दुख पहुँचाना है तो वो तो हराम है। कुरान करीम को किस हवाले से पढ़ना है उसके मुख्तलिफ अदवार और तौरीक मौजूद हैं। लेकिन हुसैन अकबर साहब, आप नहीं समझते कि इस तरीके से आप अगर किसी को ये दावा करके कहें कि जी मैं आपके मसले का हल निकाल कर आपको दे दूंगा, तो इस तरह से आप उनके यकीन को मजीद जो है उनके कदम डगमगाएंगे और वसवसों में पड़ जाएंगे। वो दावे की दो कैफियतें, एक दावा ये है कि मैं कर देता हूँ, जब मैं आएगी तो फिर तो ये शिरक है। अगर है कि नहीं मेरा काम है, कोशिश कर रहा है किताब इलाही को जो दुआएं, जो अहादीस, जो दूसरी चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं, मैंने उस पर अमल किया, उसको तजर्बा किया है, उसकी रोशनी में मैं बयान करना चाहता हूँ शिफा में जाने बिल्ला, तो यकीनन शिरक नहीं है, ये फ़ायदा मंद है। लेकिन अब ये जो एक पहलू जो सामने आ रहा था, इसमें फिर वही सवाल पैदा होता है कि ये भाई कह रहे हैं कि मैं इसको फिर दोबारा उसी कैफियत पे वापस ला सकता हूँ। आपने इसको उस कैफियत से निकाला, अच्छा काम किया, आपने दावा किया कुरानी आयात का, आपने कहा कि मैंने पढ़ी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वापस लेके जा रहे हैं उसका मतलब ये है कुछ शैतानी अमल के साथ वापस लेके जा रही हैं, किस चीज़ को लेके जा रही हैं। राना साहब, हुसैन अकबर साहब के कहने कि अगर आप इनको उसी कैफियत में फिर दोबारा लेके जा सकते हैं तो इसका मतलब ये शैतानी अमल है। नहीं, बात यह है कि शैतान वो लानती बंदा है जो शैतानी अमल करे या पढ़े। अगर कुरान करीम पढ़ना शैतानी अमल है ना, नौज़ बिल्लाह, फिर किस इनको वापस लेके जाएंगे? कुरान करीम तो शिफा है, दोबारा बीमारी में ले जाएंगे। देखो बिस्मिल्लाह, जब उसके अंदर भी गई नहीं है, अभी उसका इलाज नहीं हुआ है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये अभी तो बुनियादी स्टेप लिया है मैंने, उसके अंदर अभी आपके सामने हाजिर किया है। आज नहीं मेरे भाई, आपने ये कहा कि उसको दोबारा उसका कैफियत ले जा सकता तो मैंने कहा जो यानी ये दावा तो आपने किया उसको दोबारा ले जा सकते हो। ले जा सकने का मकसद तो ये है कि दावा नहीं किया, दावा करने वाला आप ये कह रहे हैं कि शैतानी अमल से सब कुछ होता है। नहीं, मैंने ये बात दावा किया कि आप निकाल सकते हैं। मैंने दावा नहीं किया, नौज़ बिल्लाह, मैं दावा करने वाला नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जिक्र पढ़ूंगा, जिक्र का असर अगर मेरे अंदर कमी कुताही होगी तो फिर हो सकता है ना हो। देखो मैंने ये बात की है, गुजारिश की है। गुलशन बीबी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं?